ਹੈਲੋ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ ਯੂਨਿਟਸ ਐਂਡ ਮੈਜਰਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਿਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਇਕਾਈ, ਅਤੇ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਪ, ਮਾਪਣਾ, ਮਿਣਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ। ਤਾਂ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਕੇਜੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿਲੋ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਲੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪ ਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਜਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਐਕੂਰੇਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਨਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕੂਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਲਾਟ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਡਥ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਟ ਸਟਿਚ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਪ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਨਿਟਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਸ ਬਣ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਬਣ ਗਏ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈਂਥ, ਲੰਬਾਈ ਮਿਣਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੀਟਰ ਰੋਡਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੇਜਰਿੰਗ ਟੇਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫੀਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਣਦੇ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੱਥ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬਾਂਹ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨਾਲ, ਗਿੱਠ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਜੇ ਦੂਰੀ ਮਿਣਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਣਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਐਕੂਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਰਮ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਂਹ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਫ਼ਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਐਕੂਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੇਜਰਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਕੂਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਲੈਂਥ ਹੈ, ਲੰਬਾਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲੰਬਾਈ ਮਿਣਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਮੀਟਰ ਹੈ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟਸ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਸਾਇੰਟਿਸਟਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕੂਰੇਸੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਥ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾਈ ਮਿਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਲੋਕ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਟਾਈਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਸਨ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੂਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਟਾਰਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟਾਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਨ ਹੁਣ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲਗਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਸੁਬਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਬਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਐਕੂਰੇਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਲੋਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਥ ਮਿਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਜਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਜਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ। ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ? ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੁਆਂਟਿਟੀ
ਵਿਚ ਕੈਨ ਬੀ ਮੇਜਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਸ ਦੀ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੇਜ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੇਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਣ ਦਿਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਇੱਥੋਂ ਸਨ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਣਾਂਗੇ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ठीक है। तो कुछ क्वांटिटीज़ है जो डायरैक्ट मेजर होणगियां, कुछ इनडायरैक्ट मेजर होणगियां। इत्थे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मेजरमेंट है कि जिसनों असी माप सकते हैं। एंड इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रैसड, तो जिस दियां टर्म्स दे विच फिजिक्स के जिहड़े लॉज है वो एक्सप्रैस किए जा सकते हैं। जिस तरह कोई भी लॉ है जी, असी जी स्टेटमेंट है वो हमेशा मैथेमैटिकल फॉर्म दे विच होएगी। तुहानूं कोई भी याद होएगी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस भी फिजिकल क्वांटिटी है, स्पीड भी फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम भी फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये सारियां फिजिकल क्वांटिटीज़ है जी, इन्हां नूं आपां मेजर करना है, ठीक है जी। हुण फिजिकल क्वांटिटीज़ बहुत सारियां होणगियां अपने कोल, इत्थे आपां डिस्कस करांगे, ठीक है। आप इतने कुछ सिंपल जी फिजिकल क्वांटिटीज़ की गल करते हैं। फॉर एग्जांपल आप गल करते हैं जी लेंथ की, ठीक है। लेंथ की होंदी है जी? लेंथ होंदी है जी लंबाई। हुण आप फिर वही गल करते हैं, जिवें मेरे को पेज है, मैं एक पेपर के उपर लिख रहा, तो इस पेपर की लेंथ कितनी है? तो जे मैं इस पेपर की लेंथ मिना तो मेरे को स्केल है जी, मैं स्केल नाल मिनूंगा। तो लेंथ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। एक इसकी लेंथ है, इस पेपर की लेंथ है। तो जो लेंथ है ये की चीज़ है? तो फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ की है जी? फिजिकल क्वांटिटी, जिसनों आपां मेजर कर रहे हैं, माप रहे हैं। जो सेंटीमीटर है ये की चीज़ है जी? ये यूनिट है, इकाई, कि किस यूनिट दे विच असीं मापते हैं, ठीक है। तो तीसरे जी आ चीज़ बच गई जी, अगे नंबर बच गया, इस चीज़ को कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। की कहते हैं इसनों? न्यूमेरिकल वैल्यू, जो नंबर है उसके अगे, ठीक है। हुण ये की चीज़ है जी? देखो जिहड़ा मेजरमेंट का प्रोसैस है वो किस चीज़ से बेस्ड है? द प्रोसैस ऑफ मेजरमेंट, द प्रोसैस ऑफ मेजरमेंट इज़ बेस्ड ऑन, किस चीज़ से बेस्ड है जी? इज़ बेस्ड ऑन कंपैरिजन। कंपैरिजन ते बेस्ड है जी। कंपैरिजन का मतलब होंदा है कि तुलना करनी। असी स्केल नूं देखो पेपर के उपर रख के की कर रहे हैं? असी स्केल नूं पेपर के उपर रख के तुलना कर रहे हैं कि पेपर की लेंथ कितनी है जी, ठीक है ना। तो असी तुलना कर रहे हैं जी पेपर के उपर रख के स्केल नूं। तो किसी भी चीज़ की जिहड़ी मेजरमेंट है वो किस चीज़ से बेस्ड है? कंपैरिजन ते बेस्ड है, ठीक है। जिहड़े इस दे विच नंबरस है कि 0 तो लैके 1 तक 1 सेंटीमीटर है, तो ये एक यूनिट है, ठीक है। किन्ने यूनिट आ रहे हैं जी इस दे विच? जदों असीं लंबाई नूं मापदे हां तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू है। जे मैं तुहानूं होर एग्जांपल देवां जी, जिवें देखो जी मुक्तसर तो बठिंडा जिहड़ा वो 50 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस भी लेंथ है, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल टू 50 किलोमीटर, ठीक है। तो 50 किलोमीटर, किलोमीटर की हो गया? यूनिट। 50 की होगी न्यूमेरिकल वैल्यू, तो डिस्टेंस की है? वो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। हुण जरूरी थोड़ी भी डिस्टेंस की मेजर करना है जी, तो कुछ भी असी मेजर कर सकते हैं। डिस्टेंस की जगह तो स्पीड भी हो सकती है। असी कार ते जा रहे हैं जी, ठीक है, तो साडी स्पीड कितनी है? तो ऐ भी हो सकता है जी स्पीड होवे तो साडी स्पीड 40 दी, जे असी कहने 40 की स्पीड ते हैं या 80 की स्पीड ते हैं, तो सपोज करो जी 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो 40 की है जी न्यूमेरिकल वैल्यू, किलोमीटर पर आवर की है? यूनिट, तो एक ही है फिजिकल क्वांटिटी। तो इस तरह दी अपने कोले बहुत एग्जांपल्स आउणगियां जी। कुछ भी, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसनूं जनरल एक फॉर्मूला बना देंगे है जी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उन्होंने क्यू नाल रिप्रजेंट किया जाता है, ठीक है। जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, नंबर है, उसनूं एन नाल रिप्रजेंट किया जाता है, तो जो यूनिट है उसनूं यू नाल रिप्रजेंट किया जाता है। तो क्यू की होगी जी? क्यू होगी फिजिकल क्वांटिटी,
क्यों की चीज़ है? फिजिकल क्वांटिटी जिसनों असीं मिल रहे हैं, वो लेंथ है, स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम है, कुछ भी है जिसनों मिल रहे हैं। एन की है? एन इज़ न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यू की है जी? यू इज़ यूनिट, इकाई जिस दे विच असीं मेजर करते हैं। किसी स्टूडेंट को पूछो कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, ठीक है, जिन्होंने प्रकाश की चाल कह देंगे आ, तो उसके कोल रट्टिया रटाया आंसर होएगा जी कि स्पीड ऑफ लाइट जिहड़ी है वो है जी 3 × 10⁻⁸ वो इस तरह जवाब दे देगा जी। तो नाल यूनिट दसदे ही नहीं बच्चे, क्योंकि उन्होंने आदत नहीं पई हुई। तो यूनिट तो बिना फिजिक्स के विच वैल्यू जिहड़ी है वो मीनिंगलैस है, ठीक है। तो इस तरह दी वैल्यूज़ जिवें डिस्टेंस दी है, मैं कहां जी डिस्टेंस है जी 20 की सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, ठीक है ना। तो जी स्पीड ऑफ लाइट है मीटर पर सैकेंड दे विच है। जे किलोमीटर दे विच लिखांगे तो कुछ होर वैल्यूज़ होणगियां। चलो जी इन्हां नूं बाद च डिस्कस करांगे आपां। पहलां असीं गल करिए प्रोसैस ऑफ मेजरमेंट दी कि ये किस चीज़ ते बेस्ड है जी। तो फिर मैं तुहानूं ये दस रहा कि इट इज़ बेस्ड अपॉन कंपैरिजन, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी नूं किस चीज़ नाल एक्सप्रैस करना है? क्यू नाल, न्यूमेरिकल वैल्यू नूं एन नाल, ते यूनिट नूं यू नाल। चलो फिर असीं इस एग्जाम्पल ते आने जी। हुण डिस्टेंस ते 50 किलोमीटर है, तो असीं दोबारा इस एग्जाम्पल नूं लैंदे जी। देखो तो डिस्टेंस किस दे इक्वल है? डिस्टेंस इज़ इक्वल टू 50 किलोमीटर, ठीक है। जे असी इस नूं कन्वर्ट करते हैं मीटर दे विच, तो सानूं पता है जी 1 किलोमीटर दे विच 1000 मीटर होंदे हैं। 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर। तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 1000 तो कितना बन जाएगा जी? ये बन जाएगा जी 50,000 मीटर। तो हुण मीटर ते किलोमीटर, किलोमीटर तो एक लार्ज यूनिट है जी एज़ कंपेयर टू मीटर। देखो जो यूनिट छोटा हो जाएगा, इत्थे यूनिट छोटा हो गया जी, स्मॉल हो गया, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इनक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। जो यूनिट वड्डा होएगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू स्मॉल होएगी। तो इत्थों ही एक्चुअल दे विच आपां नूं पता लगता है कि आपां किस क्वांटिटी नूं किहड़े यूनिट दे विच मेजर करना है, ठीक है। तो देखो सड़कों के उपर बोर्ड लगे हुए हैं कि मुक्तसर तो बठिंडा 50 किलोमीटर, मुक्तसर तो चंडीगढ़ 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर। तो उत्थे देखो बोर्ड मीटर च नहीं लगे, ठीक है ना। जे वो बोर्ड मीटर च ला देन बई 50,000 मीटर, ठीक है, या 2,50,000 मीटर, तो आप तो जीरो ही कहते रह जी भी कितना को डिस्टेंस रह गया। तो जो भी असी किसी चीज़ को मेजर करना है तो असी उस दे विच देखना है जी असी किहड़ा यूनिट यूज़ करना है। उस जिस तरह की क्वांटिटी है उस तरह का यूनिट यूज़ होएगा। समझ लगी गल? जे असी ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ करनी है तो उनके वाल ही साडे कोल बिगर यूनिट्स है। जिमें कि डिस्टेंस ज़्यादा सी तो किलोमीटर च एक्सप्रैस किया। जे कोई छोटा डिस्टेंस होएगा, जिमें मेरे पेज की लेंथ सी तो मैं किलोमीटर च एक्सप्रैस नहीं करूँगा, तो मैं काह च एक्सप्रैस की जी? सेंटीमीटर च, ठीक है। तो जे असी बाजार चों लोहे का गेट बनाने जाना है तो कुंटल के हिसाब नाल बनता है कि इन्ने कुंटल का बन गया जी, 1 कुंटल च 100 किलो होंदे हैं, ठीक है ना। तो जे असी सोने के गहने बनाने जाने हैं तो फिर वो काहदे च बनते हैं? वो तोले च बनते हैं जी। 1 तोले च ही सानू पता है जी हुण किन्ने कु ग्राम है। तो जिस तरह की क्वांटिटी की परचेज है, जिस तरह की क्वांटिटी की लोड है, उस तरह का यूनिट है जी। इस करके बहुत सारे यूनिट्स है। समझ लगी? तो हुण इत्थे की हो रहा है जी, देखो एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसनूं मैं क्यू नाल लिख लेना, ठीक है। इत्थे यूनिट किलोमीटर तो इसनूं U1 नाल लिख लेना, तो क्वांटिटी नूं मैं N1 नाल लिख देना। जिहड़ी साडी ये क्वांटिटी है जी 50,000, इसनूं मैं N2 नाल लिख देना, ठीक है। तो जिहड़ा इसका यूनिट है जी मीटर, इसनूं मैं U2 नाल लिख देना जी। तो हुण होया कि जो साडा यूनिट जिहड़ा वो स्मॉल हो रहा है तो फिजिकल क्वांटिटी जिहड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इनक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब जो एक चीज़ छोटी होएगी तो दूजी चीज़ जिहड़ी है वो वध जाएगी। तो उल्ट भी सही है, जिहड़ी जिसनूं असीं इत्थे
शो कर रहे हैं कि ये नंबर जो साडा 50 तो 50,000 हो गया तो यूनिट जोड़ा वो किलोमीटर तो मीटर हो गया। गल समझ लग गई जी। इस करके असीं यूनिट्स नूं की करना है जी, प्रॉपरली उसनूं वाइजली चूज़ करना है कि किहड़ा यूनिट असीं यूज़ करना है जी। क्लीयर। हुण असीं डिफाइन करना है जी यूनिट नूं। बई यूनिट की गल कीती है, यूनिट चीज़ की है, ये जिहड़ी इकाई है, किते असीं सेंटीमीटर यूज़ करी जाने हैं, किते असीं मीटर यूज़ करी जाने हैं, किते किलोग्राम है, ग्राम है, तो जो भी है जी ये यूनिट की चीज़ है। मतलब यूनिट का मतलब होंदा 1 इकाई, एक ग्राम, 1 किलोग्राम। यूनिट की चीज़ है, इट इज़ द चोजन स्टैंडर्ड ऑफ सेम काइंड। मतलब ये अपने द्वारा चुनिया गया एक स्टैंडर्ड है, ਜਾਂ 1 मीटर की रॉड जी है, ठीक है, वो एक स्टैंडर्ड है जी। स्टैंडर्ड बना लिया। सेम काइंड मतलब जी लेंथ मिलनी है तो लेंथ वर्गा स्टैंडर्ड चाहिए, ठीक है। तो उस तरह का स्टैंडर्ड चाहिए। लेंथ वास्ते लेंथ वर्गा स्टैंडर्ड चाहिए, मास वास्ते मास वाला स्टैंडर्ड चाहिए। तो इट इज़ द चोजन स्टैंडर्ड ऑफ सेम काइंड विद विच फिजिकल क्वांटिटी इज़ कंपेयर्ड एंड मेजर्ड। कि जिस नाल की फिजिकल क्वांटिटी की तुलना की जाती है, इज़ कंपेयर्ड एंड मेजर्ड, कि जिस नाल कि असीं फिजिकल क्वांटिटी नूं तुलना करते हैं तो मिणते हैं। समझ लग गई जी। जिस तरह कि मैं स्केल रख के पेज के उपर इसकी मिणती की। हुण इत्थे असीं किहड़ियां क्वांटिटीज़ की गल करते हैं, इत्थे जो फिजिक्स दे विच क्वांटिटीज़ आती हैं जी, सब तो सिंपल क्वांटिटीज़ तो असीं स्टार्ट करते हैं जी, लेंथ, मास ते टाइम तो। जिहड़ा अपना ये चैप्टर है ना स्टार्टिंग दे विच जी, ये सारा लेंथ, मास ते टाइम ते बेस्ड है। तो आप डिफाइन करते हैं जी लेंथ की चीज़ है, कि सानूं पता जी लेंथ की चीज़ है। असीं कह दिंदे हैं जी लंबाई, है ना जी। इस पेन की लंबाई की चीज़ है, ठीक है। तो ये इहदे 2 एंड्स है, तो 2 एंड्स दे विच जिन्ना फासला है, जिन्ना डिस्टेंस है, दैट इज़ लेंथ। तो इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 एंड्स ऑफ द बॉडी। तो ये की चीज़ है, it is the distance between 2 ends of the body। कि बॉडी दे 2 एंड्स दे विच, 2 सिरियां दे विच कितना फासला है, कितनी दूरी है, दैट इज़ लेंथ। तो इसनूं कई अलग अलग तरह के यूनिट दे विच मेजर किया जाता है। तो इस तरह के इहदे किहड़े यूनिट है जी, इट्स यूनिट्स आर किहड़े यूनिट है जी, तुहानूं याद होणगे कोई भी। चलो आप यूनिट्स नूं बाद विच डिस्कस करते हैं, जिवें कि सेंटीमीटर, है ना, मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर। तो कई यूनिट्स है जी। जिस तरह इसनूं फुट दे विच भी मेजर करते हैं जी, असीं गज कह दिंदे हैं, गज, यार्ड, है ना। हुण असीं मास नूं डिफाइन करते हैं, किसी भी बॉडी का मास की चीज़ होंदा है। तो बॉडी के अंदर कितना मैटर है, पंजाबी जिन्होंने मादा कह दिंदे हैं जी, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी, इट इज़ क्वांटिटी ऑफ मैटर, कि बॉडी के इनसाइड मैटर कितना है कंटेन्ड इन द बॉडी। यूनिट ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है जी। आप यूनिट किहड़े यूज़ करते हैं, ग्राम यूज़ करते हैं ना, किलोग्राम यूज़ करते हैं। होर कोई यूनिट याद आ रहा है? क्विंटल यूज़ करते हैं, क्विंटल यूज़ करते हैं ना। एक क्विंटल कितने किलो होंदा है दसो? टन सुनिया जी यूनिट, ठीक है। तो एक क्विंटल 100 किलो होंगे है जी, एक टन दे विच 1000 किलो होंगे है जी, 1000 kg। तो ये मास है जी, क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो याद रखना है जी वर्ड क्वांटिटी ऑफ मैटर। तीसरी क्वांटिटी है जी, वो है टाइम। हुण टाइम की चीज़ है जी, बड़ा डिफिकल्ट है जी टाइम को डिफाइन करना कि टाइम की है। देखो कोई इवेंट अकर कर रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो कितना टाइम ਲਈ हो रहा आप ही दसना है, ठीक है। तो उस लिए आप एक वर्ड यूज़ करते हैं इत्थे इंटरवल।
इट इज़ द इंटरवल, अंतराल, समय का जो गैप है, ठीक है, फॉर विच एन इवेंट अकर। टाइम इज़ एन इंटरवल, इंटरवल ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਤਰਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਵਕਫਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਗੈਪ ਹੈ, ठीक है। तो इट इज़ द इंटरवल फॉर विच एन ईवेंट अकर, कोई भी ईवेंट है तो इसनों काहदे विच मेजर करते हैं टाइम नूं, तो इसके की यूनिट्स है जिस तरह की सैकेंड है जी, मिनट है, आर है। तो देखो जी हुण आपां लेंथ मास ते टाइम लई, क्योंकि अपनियां बेसिक क्वांटिटीज़ है, अपना नैक्सट टॉपिक होएगा जी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल का मतलब होंदा बेस, वो अपन नैक्सट टॉपिक दे विच जा गल करांगे। बट बिफोर दैट जिहड़ियां क्वांटिटीज़ है लेंथ मास ते टाइम, इन्हां नूं मेजर करने लई डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाए गए, अलग अलग कंट्रीज़ ने डिफरेंट सिस्टम्स यूज़ किए। तो इन्हां लई जो पॉपूलर सिस्टम्स है वो मैं इत्थे डिस्कस कर रहा। देखो लेंथ मास ते टाइम नूं मेजर करने लिए एक सिस्टम बनाया गया CGS सिस्टम, ठीक है, जिंदे विच फस्ट जो लैटर है वो लेंथ लई है, सैकेंड मास लई है, तो थर्ड टाइम लई है। तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग लेंथ नूं मेजर किया जाता है सेंटीमीटर दे विच, मास नूं G फॉर ग्राम विच, ते टाइम नूं सैकेंड विच, ठीक है जी। तो मास नूं मेजर किया जाता है जी ग्राम विच, G उसका सिंबल है, टाइम नूं मेजर किया जाता है सैकेंड दे विच, S उसका सिंबल है, तो सेंटीमीटर नूं CM नाल रिप्रजेंट किया जाता है। जिहड़ा दूसरा सिस्टम है जी FPS सिस्टम, इस दे विच लेंथ नूं मेजर किया जाता है फुट दे विच, मास नूं पाउंड दे विच, टाइम नूं सैकेंड दे विच। जिहड़ा MK सिस्टम है जी, इस दे विच लेंथ नूं मेजर किया जाता है M फॉर मीटर दे विच, मास नूं किलोग्राम विच, KG जिसनूं आपां कहने अजकल यूज़ करते हैं, टाइम नूं सैकेंड दे विच, ठीक है जी। हुण ये जिहड़े सिस्टम सीगे इहदे विच अलग अलग जिहड़े यूनिट्स है वो यूज़ किए गए। देखो आ यूनिट सुनिया जी तुसीं, पाउंड अज यूज़ होंदा किते, मास नूं मेजर करने लई बाजार जो कोई चीज़ लैन जाओ तो पाउंड विच यूज़ होंदी है, आपां ग्राम दे विच भी करते हैं, देखो किलोग्राम दे विच भी करते हैं, ठीक है। पाउंड यूज़ हो रहा अजकल, सोचो कित्थे पाउंड यूज़ हो रहा है। देखो जे तुसीं बर्थडे केक लैन जाओ ना, तो अजे भी उसका वो जिहड़ा सिस्टम है वो पाउंड यूज़ करते हैं। तो कहते जी 1 पाउंड का केक है या 2 पाउंड का केक है, ठीक है। पता नहीं वो पाउंड दे विच मिलदे भी एक्चुअली कि नहीं मिलदे गे, उन्होंने पाउंड का पता भी है कि नहीं पता। कि तुहानूं पता जी 1 पाउंड दे विच किन्ने ग्राम या किलोग्राम होंदे हैं, ठीक है। तो ये वो सिस्टम्स है जो असी हुण यूज़ नहीं कर रहे, पाउंड वाला सिस्टम यूज़ नहीं कर रहे। लेंथ नूं फुट दे विच मेजर करना, देखो तो फुट कितनी लेंथ होंदी है। तुसीं ज्योमैट्री बॉक्स दे विच स्केल देखिया है, तुहाडी ज्योमैट्री बॉक्स दे विच छोटा स्केल हुंदा है, 15 सेंटीमीटर लेंथ होंदी है उसकी सेंटीमीटर दे विच, एक पासे सेंटीमीटर होंदे, एक पासे इंच होंदे है, वो हाफ फुट होंदा है, अद्धा, ठीक है। तो जिहड़ी फुल स्केल है जिहदे विच 30 सेंटीमीटर होंदे है, आ देखो जी जिहड़ी मेरे कोल स्केल पई है ये 1 फुट है, इहदे विच जे तुहानूं नज़र आ रहा होवे तो 30 सेंटीमीटर तक मार्क्स लगे हुए हैं। तो इस तरह डिफरेंट सिस्टम्स बनाए गए, कई सिस्टम्स जिहड़े सीगे वो कॉम्प्लीकेटेड सीगे, उन्हां सिस्टम्स नूं रिजैक्ट कर दिता गया, तो बड़ियां कॉम्प्लीकेशनस पैदा होंदियां सी कि अलग अलग कंट्री के साइंटिस्ट आपदा सिस्टम बना रहे हैं। तो फिर उन्होंने सारे ने रल के जी एक SI सिस्टम बनाया, ठीक है। तो SI सिस्टम का मतलब है कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो की मीनिंग है जी इसका, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स SI। तो ये सिस्टम जिहड़ा वो MK सिस्टम के नाल क्लोजली रिलेटेड है, इहदे विच भी जो लेंथ है वो मीटर दे विच मेजर होंदी है, ठीक है। मास जो है
वो किलोग्राम विच ते टाइम जो है वो सैकेंड दे विच। ठीक है, हुण तुसीं पुछोगे जी पहला ही क्वेश्चन आंदा जी बच्चों का कि फिर डिफरेंस की है कि MKS ते SI सिस्टम दे विच, तां वो तुहानूं नैक्सट लैक्चरस दे विच पता लगेगा कि MKS ते SI सिस्टम दे विच डिफरेंस की है। ठीक है जी, तो ये बहुत क्लोजली रिलेटेड है। इस सिस्टम नूं ही एक्चुअली डिवेलप किया गया, उन्होंने यही सिस्टम वधिया लग्या तो इस सिस्टम नूं थोड़ा जिहा इहदे विच चेंजिस कीतियां गईयां। तो जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ है उन्होंने विच तो इस सिस्टम नूं SI सिस्टम कहा गया जी। ठीक है, तो इन्हां यूनिट्स नूं असीं डिस्कस करांगे जी नैक्सट टॉपिक दे विच। ते आई होप कि तुहानूं ये सारा समझ लग गया होएगा। हाँ, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।